Now, so come to the basic blocks, right? Basic blocks is a set of statement that always execute in a sequence, one after the other. What is the meaning of one after the other? If we taking a loop example or if then else condition, it means the control transfer one place to another place and then shift it back to previous place. That means that is not a sequentially executions. It is a part of executions, right? One statement executed, then jump from the third or fourth instructions and then will come back to first and second instructions. That is a part of if else or while looping conditions, right? But in a simple sequential statements, one after another statement are executed. For example, if the line number one is executed, then two, then three, then onwards, right? But in non-sequential statements, line number one executed, then four executed, then five executed, and maybe some other lines eight, and then again two. So there is no sequence, right? So basic blocks always characterize on the basis of sequence, right? The characteristics of basic blocks are they do not contain any kind of jump statement in them, right? It means the jump statements are strictly prohibited in basic blocks definitions, right? There is no possibility of branching or getting halt in the middle. It means there is no possibility during between the lines you can break the things or you add on the things, right? All the statement execute in the same order they appear. It means if the line number one is occur first, line number two is occur second, and line number three is occurs in third number. So the execution is one, two, three. There is no other execution one, three, two, or one. Uh, Sorry, two, one, and three. That's not possible, right? They do not lose the flow control of the program. The strongest part of basic blocks, they never lose the flow control of the program. Three address code of the expression, right? अगर हम basic blocks को discuss कर रहे हैं तो हम कैसे basic blocks समझेंगे? अगर suppose हमने एक expression लिया हुआ है a equal to b plus c plus d, राइट? थ्री एड्रेस कोड से सारे लोग फेमिलियर हैं, तो सबसे पहले हम b प्लस सी को कैटेगराइज करेंगे एंड देन जो भी टेम्परेरी वेरिएबल होगा उसके साथ d को मर्ज करेंगे, राइट? तो t1 हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? b प्लस सी, राइट? t2 हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? t1 प्लस d, राइट? एंड लास्ट पार्ट a टेंस टू t2, राइट? अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट यही एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद t2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद a एग्जीक्यूट होगा. इट मींस यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन बाय लाइन है. सो दैट ब्लॉक इज कॉल्ड द बेसिक ब्लॉक, राइट? दूसरा पार्ट आते हैं थ्री एड्रेस कोड फॉर द एक्सप्रेशन इफ a is less than b then 1 else 0. Now three address code for this statement if a is less than b, go to line number 4, right? Otherwise t1 equal to 0, go to 5, right? 5 in line number 5 we stop the program, right? So it means whenever we execute the line number 1 there is no guarantee always execute the line number 2. It may be line number 2 or it may be line number 4, right? Or 3 sorry, it may be line number 4, right? So that is not a sequential part, right? So this is not a basic block. So basic block always contain the sequential parts, right? Now the statement do not execute in a sequence one after the other, thus they do not form a basic block. So I feel basic blocks का basic meaning clear हुआ. What is the meaning of basic block? Now next part आते हैं पार्टीशनिंग इंटरमीडिएट कोड इनटू बेसिक ब्लॉक. सपोज हमने कोई भी थ्री एड्रेस कोड्स कन्वर्ट कर रखा है, राइट? अब उस थ्री एड्रेस कोड्स में हम कितने नंबर ऑफ बेसिक ब्लॉक्स बना सकते हैं, क्लियर? सो इस चीज को भी हमें डिफाइन करना पड़ता है. सो सबसे पहला काम होता है इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमें लीडर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं. जब लीडर्स फाइंड आउट हो जाते हैं तो उसके बेसिस पे हम उसके बेसिक ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं. सो according to this point of view, the rule number 1 is come to the picture. First is determine leaders, right? So what is the leaders? So the following statements are the basically definition parts of the leaders, right? So leaders आपके पास में क्या है? कोई भी ऐसा जो first statement आप कोड में लिखते हो, that is called the leader, right? So first statement of the code is called leader. Second statement, that is a target of the conditional or unconditional go to statement. It means a statement that is target of the conditional or unconditional go to statement, that is also part of the leaders, right? And the last part is statement that appear immediately after a go to statement. यानी go to statement के बाद जो भी आपके पास में next statement मिलेगा वो आपके पास में क्या होगा? leaders होंगे, right? Clear? So rule number 1 is clear. Now rule number 2, determining the basic blocks. On the basis of leader we define the
basic blocks, right? So all the statement that follow the leader, जो follow के बाद में sequentially one by one execute हो रहे होंगे, वो सारे parts आपके पास में उस particular basic block में आएंगे, right? The first statement of the code is called the first leader, right? जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, जो फर्स्ट ब्लॉक होगा, उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, बट ऑब्वियस सी बात है वो फर्स्ट लीडर होगा, राइट? इसके बाद अगर हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बना रखे हैं तो उसमें जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो आपके पास में लीडर्स होंगे, लेकिन दैट इज नॉट कॉल्ड द फर्स्ट लीडर, दैट इज कॉल्ड द सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑनवर्ड्स, राइट? सब ब्लॉक कंटेनिंग द फर्स्ट लीडर इज कॉल्ड द इनिशियल ब्लॉक। सो जो ब्लॉक आपके पास में फर्स्ट लीडर कंटेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल ब्लॉक्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फ्लो ग्राफ। फ्लो ग्राफ इज अ बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक्स, राइट? और इस फ्लो ग्राफ को हम लोग जस्ट लाइक अ फ्लो चार्ट भी बोल सकते हैं। फ्लो चार्ट में हम लोग किस तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट करते थे, सेम चीज यहाँ पे भी होती है फ्लो ग्राफ में, बट यहाँ पे आपके पास में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होते हैं, राइट? और वो ब्लॉक्स आपके पास में क्या कहलाते हैं? बेसिक ब्लॉक्स कहलाते हैं, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट, अ फ्लो ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ विद फ्लो कंट्रोल इंफॉर्मेशन एडेड टू द बेसिक ब्लॉक्स, राइट? Second point, the basic blocks serve as node of the flow graph. It means जो basic blocks होते हैं, they work as a node in a flow graph. There is a direct edge from block B1 to block B2 if B2 appears immediately after B1 in the code, right? अगर B1, B2 two blocks हैं और अगर हमें इसे connect करना है, so there is a direct line from B1 to B2, right? Now take an example, right? First part is this is a 3 address code. So first statement is prod equal to 0, I equal to 1, then T2, T4, T1, T3, T5, T6, right? That is the intermediate code conversions. And the next part is prod equal to prod plus T6, then I equal to I plus 1. And the last part is if I is less than equal to 20, go to 5. Now, अब समझने वाली बात क्या है हमारे पास में, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपके पास में बेसिक ब्लॉक्स में होंगे, राइट? सो 1 2 3 4 जो हमारे पास में ये 4 पार्ट्स हैं, हमारे पास में क्या होंगे? बेसिक ब्लॉक्स में होंगे। पांचवा पार्ट क्यों नहीं हो सकता बेसिक ब्लॉक में? अभी हम लोगों ने पीछे चीजें समझी हुई थी। अगर हम गो टू 5 पे कर रहे हैं, गो टू 5 का मतलब क्या है? हम इस वाले स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब इस वाले स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इट मींस हमारे पास में क्या हुआ? ये इसके साथ में कनेक्ट है, सो ये इसका पार्ट नहीं हो सकता। तो हमने 1 2 3 4 एक पार्ट में रखे। इसके बाद अगर हम देखें तो T1 से लेके ये सारे पार्ट वन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये वाला पार्ट किसके साथ कनेक्ट है? लास्ट वाले लाइन के साथ में कनेक्ट है। तो इट मींस 5 से लेके 11 तक ये एक ब्लॉक होगा, राइट? सो फ्लो ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो देखते हैं। अगर हम इसी पार्ट को फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो पहला पार्ट हमारे पास में 1 2 3 4 हो गया, और सेकंड पार्ट आपके पास में 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, राइट? नाउ B1 को B2 से कनेक्ट किया, ये डायरेक्टली कनेक्शन है। इसके बाद जब हम इसी ब्लॉक को इसी ब्लॉक से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में क्या है? इफ स्टेटमेंट को हम कहां पे भेज रहे हैं? गो टू B2, यानी इसी ब्लॉक पे हम दोबारा भेज रहे हैं। तो हमने यहाँ से ब्लॉक के बाहर से एक लूपिंग स्टेटमेंट डिजाइन किया, कहां पे? सेल्फ के लिए, राइट? सो फर्स्ट पार्ट बेसिक ब्लॉक्स में हो गया, सेकंड पार्ट आपके पास में ब्लॉक हो गया, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया। तो ये आपके पास में फ्लो कंट्रोल्स डिफाइंस होते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजाइन अ फ्लो ग्राफ, राइट? गिविंग पीस ऑफ कोड दिया होगा, उसके बेसिस पे आपको पहले 3 एड्रेस कोड कन्वर्ट करना होगा। आफ्टर कन्वर्टिंग 3 एड्रेस कोड यू डिफाइन द बेसिक ब्लॉक्स, आफ्टर डिफाइन द बेसिक ब्लॉक्स यू कंप्लीट द फ्लो ग्राफ, राइट? नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। DAG रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है, राइट? सो DAG इज आल्सो द पार्ट ऑफ फ्लो ग्राफ्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? DAG का मतलब क्या होता है आपके पास में? DAG हमारे पास में क्या है? डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ्स होते हैं। DAG में हम केवल उन पार्ट्स को डिफाइन करते हैं जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं, राइट? सो अ DAG for basic blocks is a directed acyclic graph with the following labels or note. The labels of the graph are labeled by unique identifiers and that identifier can be variable name और constant, कुछ भी हो सकते हैं, राइट? जो आपके पास में लेबल होते हैं DAG के, राइट, वो आइडेंटिफायर्स के ही थ्रू डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट है आपके पास में, इंटीरियर नोड्स ऑफ द ग्राफ इज लेबल्ड बाय एनी ऑपरेटर सिंबल। ये फिक्स कंडीशन है, जो इंटरनल नोड्स होंगे वो हमेशा क्या होगा? कोई भी ऑपरेटर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, नोड्स आर आल्सो गिविंग अ सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिफायर्स और लेबल्ड टू स्टोर द कंप्यूटेड वैल्यू। सपोज यू वांट टू कंप्यूट a प्लस b, तो a आपके पास में क्या होगा? पेरेंट पे होगा, सॉरी प्लस पेरेंट पे होगा, A लेफ्ट पे होगा और B राइट पे होगा। दैट इज अ पार्ट, राइट? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, DAG provides a good way to determine the
कॉमन सब एक्सप्रेशन। डैक हम क्यों यूज करते हैं? जहां पे भी हमारे पास में कॉमन सब एक्सप्रेशन यूज होते हैं, डैक के थ्रू वो चीज बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। सो हम जो हमारे पास में रिपीटिशन होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं डैक के थ्रू, राइट। नेक्स्ट पार्ट है, इट गिव्स अ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द वैल्यू computed by the statement is used subsequent statement। इट मीन्स हमारे पास में एक डैग एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। अब एल्गोरिथम क्या है आपके पास में कंस्ट्रक्ट करने की डैग की? तो फर्स्ट आपके पास में क्या है, ईच नोड कंटेन अ लेबल। जो भी नोड है वो एक लेबल के आइडेंटिफाई करेगा। फॉर लीफ द लेबल इज एन आइडेंटिफायर। ईच नोड कंटेन अ लिस्ट टू अटैच आइडेंटिफायर टू होल्ड अ कंप्यूटेड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बोलते हैं केस वन क्या है, एक्स इक्वल टू वाई ऑपरेटर जेड, सो ये आपके पास में केस वन है। केस टू आपके पास में केवल क्या हो सकता है, एक्स इक्वल टू ऑपरेटर वाई, यानी यूनिरी की बात हो रही है, बाइनरी की बात हो रही है, राइट। और यहाँ पे हम इक्वल टू की बात कर रहे हैं, राइट। सो मेथड क्या है आपके पास में, स्टेप वन, इफ वाई ऑपरेंड इज अनडिफाइंड देन क्रिएट नोड वाई। अगर हमारे पास में वाई ऑपरेंड नहीं है यानी कोई चीज नहीं है तो हमें उसे क्रिएट करना पड़ेगा, यानी उसके लिए नोड को हमें क्रिएट करना है, राइट। इफ जेड ऑपरेंड इज अनडिफाइंड देन द केस वन क्रिएटेड नोड जेड, राइट। सो अगर हमारे पास में नहीं है तो हमें उस पर्टिकुलर नोड के लिए, उस पर्टिकुलर ऑपरेंड के लिए उस नोड को जनरेट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में स्टेप टू, फॉर केस वन क्रिएट नोड राइट ऑपरेंड ऑपरेटर whose right side is node z and left child is node y, right। यानी जब भी हम ऑपरेटर की बात करते हैं उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड पे आपके पास में कोई ना कोई नोड एग्जिस्ट करेगा, राइट। केस टू, चेक वेदर देयर इज अ नोड विथ वन चाइल्ड। अगर वो वन चाइल्ड है तो हम उसके करस्पॉन्डिंगली उसे चेक करेंगे। एंड द थर्ड, नोड n विल बी नोड वाई, राइट। सो जो हमारे पास में केस थ्री है, जो यानी अगर हमारे पास में एक ही नोड है तो वो उसी नोड को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। नाउ अब इस चीज को समझते हैं कैसे बनता है डैग। एक हमने स्टेटमेंट लिया हुआ है, राइट। ये थ्री एड्रेस कोड है आपके, s इक्वल टू 4 इंटू आई, s2 इक्वल टू a इंटू s1। यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर कर दें, जब हम स्टैक जब हम एरे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम डिफॉल्ट मान के चलते हैं थ्री एड्रेस कोड में 4 बाइट्स हमारे पास में किसी भी पर्टिकुलर एरे के लिए हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मल्टीप्लाई विद 4, राइट। सो S1 का साइज हमने कैसे निकाला है, कितने नंबर ऑफ स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट है, 4 मल्टीप्लाई दैट एलिमेंट, राइट। S2 इक्वल टू a ऑफ S1, मीनिंग क्लियर है, राइट। S3 में भी हमने सेम काम किया, 4 इंटू आई, और फिर S4 में उसको इनिशियलाइज कर दिया, क्लियर। S5 में हमने क्या काम किया हुआ है, S2 इंटू S4, यानी जो भी S2 और S4 की वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। S6 में हमने क्या किया हुआ है, प्रोड प्लस S5, जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू है, प्रोडक्शन की वैल्यू है, उसमें S5 को जोड़ दिया, राइट। इसके बाद जो भी एक्सेस की वैल्यू है उसको फिर से प्रोड में असाइन कर दिया। S7 में हमने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, जो भी S7 की वैल्यू थी उसको आई में इनिशियलाइज कर दिया, और इस स्टेप को हम कब तक परफॉर्म कर रहे हैं, जब तक कि हमारे पास में आई की वैल्यू 20 नहीं हो जाती, राइट। अब इन स्टेटमेंट्स को हम कैसे कन्वर्ट करें, राइट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा था, S1। सो S1 हम अपने रेफरेंस के लिए लिखते हैं। एक्चुअल में हमने आपको क्या बताया था, पेरेंट में हमेशा क्या होता है आपके पास में ऑपरेटर्स होते हैं, तो ऑपरेटर कौन सा है इस स्टेटमेंट में, एस्टिक, तो एस्टिक को हमने ऊपर लिखा। अब इसके लेफ्ट और राइट में क्या है, 4, और ये कंडीशन हमने मान ली है I0, राइट, क्लियर। तो आप इसे आई भी लिख सकते हो, I0 भी लिख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, S2 पे, राइट। S2 आपके पास में क्या कह रहा है, AS1 मतलब हमें एरे रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका पार्ट है, ऊपर वाले का पार्ट है, यानी अब हम इसे इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे। इसके ऊपर कनेक्ट करने का मतलब क्या है, हमें एरे सिंबल यहाँ पे यूज करना, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए। तो हमने क्या लिखा हुआ है, ए एरे, राइट। और इधर हमारे पास में पहले से कौन सा पार्ट था, एस्टिक, 4 और I0। स्टेटमेंट 2 समझ में आया। नाउ स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं, S3 इक्वल टू 4 इंटू आई, राइट। इस चीज को कैसे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, 4 इंटू आई। अब अगर हम 4 इंटू आई की बात करें तो पहला वाला स्टेटमेंट और तीसरा वाला स्टेटमेंट सेम है ना, तो हमें इसके लिए कोई भी नया स्टेटमेंट नहीं डिजाइन करना। हमने यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग इसका एक्सप्रेशन नंबर लिख दिया S1 कॉमा S3, यानी अगर S1 एग्जीक्यूट होगा तब भी यही काम करना है, S3 एग्जीक्यूट होगा तब भी यही काम करना है। अब यहाँ पे देखो रिपीटिशन मिला था, सो रिपीटिशन आपके पास ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गया। सो डैक का ये एडवांटेज होता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद स्टेटमेंट 4 है। स्टेटमेंट 4 आपके पास में क्या था, S4 इक्वल टू BS3। सो अगेन फिर से हमें इस पार्ट को कैटेगराइज करना। अब इसके ऊपर लेबल नहीं जाएगा,
क्यों? क्योंकि ये भी आपके पास में इसी पर्टिकुलर एस्ट्रिक के थ्रू डिफाइन हो रहा है। तो हमने इसी के पैरेलली में एक और S2 क्रिएट किया, राइट, S4 क्रिएट किया, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने दूसरा एलिमेंट भी डिफाइन कर दिया, राइट। सो ये स्टेटमेंट 4 हो गया। स्टेटमेंट 5 पे हमारे पास में क्या था? S6, सॉरी, S6 इक्वल टू प्लॉट प्लस S5, राइट। सो S5 हमारे पास में क्या है? एक मिनट, स्टेटमेंट 4 S5, सॉरी, S, ये है स्टेटमेंट 4, S5 इक्वल स्टेटमेंट टू, 5। हाँ, S2 इंटू S4। तो S2 इंटू S4 का मतलब क्या हुआ? S ऊपर हो गया, S2 इधर है और S4 इधर है। S2 और S4 किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? एरे को। सो हमने यहाँ एरे लिखा हुआ है। ये केवल आपके रिप्रेजेंटेशन के लिखे हुए हैं, जिससे आपको ये चीज समझ में आए बन कैसे रही है। जब हम एक्चुअल टैग लिखते हैं तो हम इन स्टेटमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। आप लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने S6 को एग्जीक्यूट किया है। तो S6 में prod प्लस S5 है, तो हमने prod और S5 को जोड़ दिया। एंड द लास्ट पार्ट, सॉरी, S7 है। सो S7 के में अपने I प्लस 1 किया हुआ है। सो आई, एक मिनट, 6 एंड 7, राइट। prod इक्वल टू 6, ये हमारे पास में हो गया। S7 को अब हमें यूज करना था। सो स्टेटमेंट 7 कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये पार्ट हमारे पास में एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है? I प्लस 1 का पार्ट है, राइट। सो I प्लस 1 को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये प्लॉट के पार्ट में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लस सिंबल यूज किया हुआ है। प्लस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में प्लॉट 0 है और S5 है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में प्लस का सिंबल है। प्लस के सिंबल को हमने यूज किया, प्लस प्लॉट 0 और S5, ये S6 का पार्ट था। क्लियर? सो ये पूरा पार्ट हमारे पास में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके बाद वाले पार्ट है S7, और फिर इफ I is less than equal to 20 and go to 1। तो इस पार्ट को हमने लेस देन इक्वल टू चेक किया, S7 को चेक किया, राइट। इस वाले पार्ट को प्लस के साथ में कनेक्ट कर दिया, लेस देन इक्वल टू 20। सो ये हमारे पास में ओवरऑल डेक रिप्रेजेंटेशन है किसका? जो हमने गिविंग प्रॉब्लम ली थी। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं कैसे डेक क्रिएट करते हैं। सपोज हमारे पास में ये 3 एड्रेस कोड दिया हुआ है, A इंटू बी एक्स, राइट, D इक्वल टू बी, E इक्वल टू डी इंटू सी, B इक्वल टू ई, F प्लस बी प्लस सी, G इक्वल टू F प्लस डी, राइट। सो अब अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले A इक्वल टू बी इंटू सी है, राइट। सो A इक्वल टू बी इंटू सी। अब देखो कॉमन स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? बी सी, ये दोनों कॉमन स्टेटमेंट है, राइट। सो ए ई हमारे पास में एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर हम ए की बात करें और आपके पास में ई की बात करें तो इनका ऑपरेशन स्टाइल सेम है। तो हमने एस्ट्रिक लगाया, राइट, और इसके करस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन किया हुआ है इस चीज को, ए ई बी तीनों यहाँ पे क्यों डिफाइन किए हैं? क्योंकि तीनों का नेचर आपके पास में क्या है? सिमिलर है, राइट। क्लियर? सो ए ई बी के करस्पॉन्डिंग हमने इसको डिफाइन किया हुआ, और एस्ट्रिक के करस्पॉन्डिंग हमने डी और सी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम बी की वैल्यू को डी में असाइन कर रहे हैं, राइट। इसलिए अगर हम डी लिख देते हैं तो बी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। सो एस्ट्रिक डी सी, ये एक पार्ट में आ गया, रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट हट गए। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट था आपके पास में प्लस वाला, तो प्लस को आपने जोड़ दिया है, राइट, और एफ को जोड़ दिया है। तो दो पार्ट थे, एफ इक्वल टू बी प्लस सी, राइट। तो बी का मतलब क्या हुआ आपके पास में? इस वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग, और सी इस वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग है। जी के बाद में बात करें तो जी का मतलब था एफ प्लस डी, तो आपने प्लस के करस्पॉन्डिंग एफ और डी को जोड़ दिया, राइट। सो दिस इज अ डैग रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे डैग में केवल क्या काम होता है? रिपीटिशन एलिमेंट हट जाते हैं। यहाँ पे देखो रिपीटिशन नहीं है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इस चीज को समझते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस यूज किया गया है, लेकिन एक बार टी वन इक्वल टू ए प्लस बी है, तो हमने ए प्लस बी को डिफाइन किया। नेक्स्ट टी वन प्लस सी है, तो ये जो प्लस है इसका पूरे का आउटपुट किसमें स्टोर हो रहा है? टी वन में। तो टी वन, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया? सी, और इसके साथ में क्या ऑपरेशन यूज कर लिया? प्लस। तो ये किसकी वैल्यू है? टी टू की, और इसके साथ आपने क्या परफॉर्म करा दिया? एस्टिक। तो देखो अब यहाँ पे आपके पास में जो पेरेंट है, कभी भी चेक करो, वो हमेशा क्या है आपके पास में? ऑपरेटर है। क्लियर? नेक्स्ट वन इसी तरीके का एग्जांपल है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, राइट, मल्टीप्लाई करना है। सो हमने हर बार ए प्लस को डिफाइन किया और एक दूसरे के साथ में इसे कनेक्ट करते चले गए। क्लियर? सो ये आपके पास में टैग रिप्रेजेंटेशन सर। क्लियर? नाउ अब आते हैं ऑप्टिमाइजेशंस पे, राइट। तो ये जितना भी पार्ट हम लोगों ने डैक पढ़ा, या आपके पास में फ्लो ग्राफ पढ़ा, या फिर आपके पास बेसिक ब्लॉक्स पढ़ा, ये सारे आपके पास में ऑप्टिमाइजेशन के ही पार्ट है। जब हम ऑप्टिमाइजेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें 3 एड्रेस कोड दिया होता है, हम उससे बेसिक ब्लॉक फ्लो ग्राफ बनाते हैं, राइट। उसमें कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज करते हैं और इसके बाद उसे समराइज कर देते हैं, राइट। सो पहला पार्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन का। ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोग्राम, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, जस्ट अ मिनट,
Okay. Optimization is a program transformation technique which try to improve the code by making it consume less resources and deliver high speed. हम हमेशा ऑप्टिमाइजेशन क्यों यूज करते हैं? आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये काम किया हुआ है जब आप प्रोग्रामिंग करते हो। ऑप्टिमाइजेशन यानी कहीं दो लूप की जगह एक लूप पे काम हो जाए, राइट? आप लोगों ने हैक विथ इन्फी या आपके पास में इस तरीके के कोडिंग कंपटीशंस यूज किए हुए हैं, उसमें भी आप क्या करते हो? प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हो, लॉजिक को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हो। इट मींस रिसोर्स मिनिमाइज हो जाए और उसकी स्पीड बढ़ जाए। तो ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ सर गया है? आपकी वॉइस बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। ओके ओके, नाउ आपको ये चीज क्लियर हुई कि ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या है? कि स्पीड को हाई करना, राइट? और सेकंड पार्ट क्या होता है? जो रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमाइज करना, यानी उनका मिनिमम यूज करना। इन ऑप्टिमाइजेशन हाई लेवल जनरल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रेंट्स आर रिप्लेस्ड। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ, राइट। ओके, सो कोड ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ आपके पास में कि कोड ऑप्टिमाइजेशन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए प्लस स्पीड को फास्ट करने के लिए, राइट? नाउ कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस मस्ट फॉलो द 3 रूल्स। कौन कौन से 3 रूल्स हैं? पहला है आउटपुट कोड मस्ट नॉट इन एनी वे चेंज द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। इट मीन्स क्या है? अगर हम किसी भी कोड को मिनिमाइज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका मीनिंग चेंज हो जाए, उसका प्रोसेस फ्लो चेंज हो जाए, उसका आउटपुट चेंज हो जाए। दैट इज डजंट मीन्स, राइट? कोड ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग होता है कि इनपुट्स और आउटपुट्स आपके पास में रिमेन्स अनचेंज रहे, राइट? सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमाइजेशन शुड इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोग्राम एंड इफ पॉसिबल द प्रोग्राम शुड डिमांड लेस नंबर ऑफ रिसोर्सेज। सो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? प्रोग्राम की स्पीड बढ़ाना। और सेकंड क्या है आपके पास में? रिसोर्सेज को मिनिमल यूज कराना, राइट? क्लियर? थर्ड पार्ट है आपके पास में ऑप्टिमाइजेशन शुड itself be fast and should not delay the overall compiling process, right? कितने लोगों ने ओएस पढ़ी है? सबने ओएस पढ़ी है। ओएस में आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ते हो, राइट? जहां पे और आपने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग्स भी पढ़ी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रायोरिटी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एजिंग। एजिंग का मीनिंग क्लियर है कि हम किसी भी चीज की प्रायोरिटी इतनी लो या हाई ना कर दें कि उसे कभी प्रोसेस ही ग्रांट ना हो। तो हम क्या करते हैं? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं? प्रोसेस की प्रायोरिटी को हाई या लो करते रहते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी कि ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस ऐसा ना हो कि वो इटसेल्फ में इतना डिले हो जाए कि जो ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग है वही वॉश आउट हो जाए। क्लियर? सो ऑप्टिमाइजेशन शुड इटसेल्फ बी फास्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहे हैं वो इटसेल्फ में फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हमने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें हमने कोड को ऑप्टिमाइज किया, लेकिन लॉजिक इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि वो इटसेल्फ में कैलकुलेट करते समय टाइम लेने लगा, राइट? सो ओवरऑल जो उसका आउटपुट था या जो उसका इम्पैक्ट था वो आपके पास में लेस हो गया, राइट? Effort for a optimization code can be made at various level of compiling the process. At the beginning, user can change or rearrange the code or use better algorithm to write the code. कभी कभी होते हैं जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हम किसी भी प्रोग्राम के कोड को लिखते हैं, राइट? तो वो बहुत लेंदी होता है। थोड़े टाइम बाद टीचर आता है, उसको बोलता है ये पार्ट आपके पास अननेसेसरी है, इसको एक साथ क्लब कर सकते हो। इफ के साथ में आप मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हो, स्विच केस लगा सकते हो, तो आपका प्रोग्राम क्या हुआ? ऑप्टिमाइज हो गया, राइट? After generating intermediate code, the compiler can modify the intermediate code by address calculation and improving loops. जो एक्चुअल हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं कंपाइलर के टर्म में, वो सेकंड पार्ट है। लूप ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, राइट? कोड ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग है जो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, कुछ पार्ट कंपाइलर के पार्ट में होता है, बट रिमेनिंग जहां पे भी हम कहते हैं आफ्टर जनरेटिंग इंटरमीडिएट कोड, जब आप इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हो तो ये सारा का सारा पार्ट किसके थ्रू होगा? कंपाइलर डन करेगा, राइट? वाइल producing the target machine code, the compiler can make use of memory hierarchy and CPU register, right? जब हम मशीन टारगेट कोड जनरेट करते हैं तो इट मीन्स हम किसकी बात करते हैं? जो भी हमारे पास में मेमोरी रजिस्टर्स है, जो एक्यूमुलेट रजिस्टर्स हैं, राइट? उनकी हायरार्की में एग्जीक्यूशंस की बात करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास में
ऑप्टिमाइजेशन कैन बी कैटेगराइज ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स. पहला आपके पास में मशीन इंडिपेंडेंट और सेकंड इज मशीन डिपेंडेंट, राइट. मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट का मीनिंग समझ लेते हैं. ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या है? बहुत सारे आपने ओएस देखे होंगे, राइट, जो मशीन डिपेंडेंट है. वन ऑफ देम एंड्रॉइड, राइट, आईओएस, क्लियर, विंडो, राइट. ये आपके पास में क्या है? मशीन डिपेंडेंट है. अगर हम आपसे बोलते हैं आप एप्पल का iOS ले आओ और आप एंड्रॉइड मोबाइल पे रन करा दो, पॉसिबल नहीं है. या एंड्रॉइड का आपके पास में जो ओएस है वो एप्पल पे रन करा दो, पॉसिबल नहीं है. इट मींस जहाँ पे मशीन डिपेंडेंसी हो, यानी आपके पास में जो पार्ट्स आप यूज कर रहे हो, प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, वो स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए यूज हो रही है, राइट. दूसरा होता है मशीन इंडिपेंडेंट, यानी आपने बाइट्स कोड के फॉर्म में किसी चीज को जनरेट कर रखा है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे बोलते हैं सी की एक्सी फाइल है तो आप उसे यूनिक्स में भी रन करा लो, राइट, विंडो पे भी रन करा लो, एंड्रॉइड पे भी रन करा लो, कहीं पे भी रन करा लो, क्योंकि EXE का नेचर आपके पास में क्या है? सिमिलर है, राइट. मीनिंग क्लियर है? नाउ मशीन इंडिपेंडेंट इंक्लूड्स टू टाइप्स. फर्स्ट है आपके पास में फंक्शन प्रिजर्वेशन और सेकंड है आपके पास में लूप प्रिजर्वेशन. फंक्शन में आपके पास में आता है कंपाइलिंग टाइम इवैल्यूएशन. कंपाइलिंग टाइम इवैल्यूएशंस को हम लोग अगेन दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट इज कांस्टेंट फोल्डिंग एंड सेकंड इज कांस्टेंट प्रोपोगेशन. सेकंड आता है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन. इसका मीनिंग हम लोगों को क्लियर है कि अगर कोई कॉमन एक्सप्रेशंस हैं तो उनको एलिमिनेट करना है. ये चीज हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, कंप्यूटर सॉरी कंपाइलर आपके पास में लो लेवल लैंग्वेज में करता है. तो जब हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 3 एड्रेस कोड पे से सॉल्व करेंगे. हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे बड़ा सा क्विक शॉट का, राइट, और उस क्विक शॉट पे हम ये जितने भी पार्ट हैं जिनको अभी हम थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं, वन बाय वन सारे प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेंगे, राइट. नेक्स्ट है आपके पास में कोड मूवमेंट्स, यानी कोड को हम एक जगह से दूसरे जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं लेकिन उससे उसका मोटिव चेंज नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, किसी एक वेरिएबल को हमें केवल वन टाइम इनिशियलाइज करना है और अगर हम उसे लूप के अंदर डाल दें तो क्या होगा? वो 10 टाइम्स बार बार इनिशियलाइज होगा जबकि हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट इज द मीनिंग ऑफ कोड मूवमेंट्स, कि हम कोड्स को रीचेंज तो कर रहे हैं लेकिन उससे हमारी ओवरऑल फंक्शनलिटी पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है. दैट कोड एलिमिनेशन, बहुत सारे कोड्स हम लिखते हैं जो प्रोग्राम में कभी यूज ही नहीं हो रहे हैं, तो हम उनको चेक करके उन्हें रिमूव कर देते हैं. लूप ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग है फ्रीक्वेंसी रिडक्शन, यानी जो हमारे पास में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं कोड की, राइट, उनको हम रिड्यूस कर दें, राइट. स्टैंडर्ड रिडक्शंस में भी जो हमारे पास में लेंथ लिखी हुई है उसको कैसे कम किया जाए, राइट. इनरिलेवेंट को इनवेरिएंट कोड्स का बेसिक मीनिंग वही है कि हमारे पास में जो अननेसेसरी कोड्स हैं उनको हम हटा दें, राइट. सो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं, कांस्टेंट फोल्डिंग क्या होता है? कांस्टेंट फोल्डिंग का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स फोल्डिंग द कांस्टेंट. मीनिंग से समझ में आ रहा है? फोल्डिंग द कांस्टेंट मीनिंग क्या है? सपोज अगर हम बोलते हैं सर्किल है, राइट, तो सर्किल का आपके पास में सर्कमफेरेंस क्या है? 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई विद डायमीटर्स. अब मुझे आप बताओ 22 डिवाइडेड बाय 7 की जगह अगर हम 3.14 लिखें, विच वन इज बेटर? 3.14 और 22.7? बट ऑब्वियस है 3.14 इज बेटर, क्योंकि आपको पहले 22.7 को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. अब आप कंपाइलर पढ़ चुके हो तो पहले 22 रिकॉग्नाइज होगा, देन स्लैश रिकॉग्नाइज होगा, देन 7 रिकॉग्नाइज होगा, फिर इसके बीच का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन मल्टीप्लाई होगा. सो इट टेक्स टाइम टू कंज्यूम. rather than we convert this part into 3.14 directly, right? So those expression are replaced with their respective results. So meaning समझ में आ रहा है? This technique evaluate the expression to 22.7 at a compile time, और इस कंपाइल टाइम में इसको कन्वर्ट करने के बाद में आप क्या करोगे? 3.14 से इसे रिप्लेस करा दोगे, राइट. दिस सेव द टाइम एट रन टाइम. सो जब हम कंपाइल कराने के बाद रन में किसी भी प्रोग्राम को यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस चीज को डिफाइन कर लेगा, तो आपका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो हमेशा मिनिमाइज होगा. तो कांस्टेंट फोल्डिंग मीनिंग समझ में आया. नेक्स्ट है आपके पास में कांस्टेंट प्रोपोगेशन. कांस्टेंट प्रोपोगेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? इट सम वेरिएबल हैज बीन असाइंड सम कांस्टेंट वैल्यू, देन इट रिप्लेस दैट वेरिएबल with its constant value in further program during the compilation. It means अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास में क्या चीज विजिबल है? पाई इक्वल टू 3.14. रेडियस हमारे पास में क्या विजिबल है? 10. और हम एरिया निकाल रहे हैं आपके पास में, क्लियर, पाई इंटू रेडियस, राइट. अब अगर हम इस चीज को इवेल्युएट करें तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट प्रोपोगेशन का मीनिंग क्या हुआ? कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाए, राइट. और रिप्लेस होने के बाद में हमारे पास में एग्जीक्यूशन टाइम में हमारे पास में क्या है? वो चीजें डायरेक्टली इवेल्युएट हो जाए तो हमारे पास में क्या होगा? चीजें ईज हो जाएंगी. अदरवाइज क्या होगा? चीजें कॉम्प्लेक्स रहेंगी, क्लियर, और टाइम हमारे पास में ज्यादा लगेगा. तो देखो इसमें क्या दे रहे हैं? इन दिस टेक्निक सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल पाई एंड रेडियस एट द कंपाइल टाइम, राइट. सो मीनिंग क्लियर हुआ?
कंपाइल टाइम में हम इन चीजों को क्या कर रहे हैं, पहले से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो जब हम कंपाइल टाइम में इन चीजों को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, वो चीजें हमारे पास में कैलकुलेट करते टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट है, तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। वो डायरेक्टली इवेल्युएट हो जाएंगे, तो हमारी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास में द इट देन इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। तो आपने इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लिया, द एक्सप्रेशन इज देन रिप्लेस विथ इट्स रिजल्ट 314, राइट। सो अब आपके पास में ये जो एक्चुअली एक्सप्रेशन था वो डायरेक्टली क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट प्रोपोगेशन, राइट। मतलब आप प्रोपोगेट कर रहे हो, वन के बाद दूसरी चीज है, दूसरे के बाद तीसरी है, आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट करी और उसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये मींस आपके पास जो रनिंग टाइम है वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया, राइट। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशंस, राइट। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशंस का मीनिंग सबको क्लियर होगा, जहां पे भी हमारे पास में कॉमन पार्ट है उनको एलिमिनेट कर दो, राइट। द एक्सप्रेशन दैट हैव बीन ऑलरेडी कंप्यूटेड बिफोर अपीयरिंग अगेन इन द कोड for computation is called common sub expression, right. In this technique, as the name suggested, it involved eliminating the common sub expression. The redundant expressions are eliminated to avoid the recomputations, right. The already computed result is used in the further program when required. जब भी हमें जरूरत है तो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं आपके पास में, राइट। S1 इक्वल टू हमारे पास में लिखा हुआ 4 × I, S2 इक्वल टू आपके पास एरे में इनिशियलाइज किया, S3 फिर से हमने मल्टीप्लाई किया, S4 देखो फिर से क्या है, रिडंडेंट एक्सप्रेशन है। सो S1 और S4 को हमें क्या करना है, दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने S1 एग्जीक्यूट कर रखा है तो हम इसी चीज को हम रिप्लेस कर दे सारी जगह पे, क्योंकि S1 और S4 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, सेम है। सो ये चीज आपके पास में कैसे डिफाइन होगी, एक चीज तो मैनुअली हम चेक करते हैं, दूसरा आपके पास में 3 एड्रेस कोड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कंपाइलर इन चीजों को टेक केयर करता है, राइट। सो यहाँ पे जो हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो किसके रेफरेंस में डिस्कस कर रहे हैं, कंपाइलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, ये स्टेटमेंट हट जाएगा, S4 की जगह S1 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कोड हमारे पास में डिस्कस, राइट। सो ये आपके पास में क्या था, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। नाउ कोड मूवमेंट्स क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द कोड present inside the loop is moved out if it is does not matter whether it is present inside or outside, right. Such a code unnecessarily get executed again and again with each iteration of the loop. This lead to a wastage of time. For example, अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस जेड की बात करें, राइट, सो और हमें यहाँ पे कहीं पे भी x की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, तो हम इस पार्ट को अंदर क्यों बार बार लिखें, राइट। अगर हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे होते, y या z की वैल्यू को किसी को भी चेंज कर रहे होते, तो हमें इसको लूप के अंदर लिखने की जरूरत थी। अगर हमें इसका कैलकुलेशन वन टाइम चाहिए है तो बट ऑब्वियस सी बात है, हम इसे कहाँ पे लिखेंगे, लूप के बाहर लिखेंगे। अगर लूप के अंदर लिखेंगे तो जितने टाइम्स लूप चलेगा उतने ही टाइम्स ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा, तो रनिंग आपके पास में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर कोई भी इस तरीके का कोड आपके पास में है, देन वी यूज द कोड मूवमेंट, बट अनटिल अनलेस हम तभी ये काम करेंगे जब आपके पास में प्रोग्राम का आउटपुट्स कहीं पे भी डिफर ना करे, राइट। सो दैट इज अ बेसिक पार्ट, राइट। एग्जाम्पल आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा कोड ऑप्टिमाइजेशन का, सो कल के लेक्चर में हम लोग कोड ऑप्टिमाइजेशन का एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। इसके बाद केवल एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कल बाइंड अप हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, कोई डाउट है किसी को? सबको क्लियर? टैग रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर से बता दीजिए। टैग रिप्रेजेंटेशन, ओके बेटा एक काम करना, टैग रिप्रेजेंटेशन का ये पार्ट आप पहले एक बार खुद सॉल्व करने करके देखना, राइट। आपको करना क्या है, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उन एक्सप्रेशंस को वन बाय वन कनेक्ट करना है, किसके बेसिस पे, उसके ऑपरेटर के बेसिस पे, राइट। जैसे सपोज अगर हम इस वाले की पार्ट की बात करें, सबसे इजी एग्जांपल है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, T1 इक्वल टू A प्लस बी। तो हमने क्या किया हुआ, T1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और A और B लिखेंगे, राइट। और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, पूरा T1 के, तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ T1 लिख सकते हैं, राइट। तो T1 का सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो गया। नाउ स्टेटमेंट 2 का मतलब क्या है, T1 क्या है, T1 का मतलब ये प्लस है ना, आपने यहाँ T1 रखा हुआ है, अपनी समझ के लिए आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूजन होगा डेक बनाने में, राइट। तो यहाँ पे T1 है और T2 आपने क्या बोला हुआ है, T1 प्लस सी, राइट। तो जब आप T1 प्लस सी की बात कर रहे हो, क्लियर, तो T1 प्लस सी की बात करने का मीनिंग क्या हुआ आपके पास में, इस T2 के करस्पॉन्डिंग हम प्लस और T1 ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो हमने एक प्लस सिंबल लगाया,
एक नया वेरिएबल सी डिफाइन किया और दूसरा हमारे पास में हमने यहाँ पे T1 डिफाइन किया। तो अब T1 का मतलब क्या था, प्लस वाला ऑपरेशन, तो ये पूरा पार्ट इसका मतलब क्या है, T1 ही तो है, राइट। इसी तरीके से T3 की बात करी तो T3 का मतलब क्या है, T1 मल्टीप्लाई T2। सो T1 हमें ये मिल रहा है, T2 ये मिल रहा है, इसके साथ में हमने एस्टेरिस्क को कनेक्ट कर दिया। सो आप अपने रेफरेंस के लिए T1 T2 T3 लिख लिया करो, जिससे आपको समझ में आ जाए, बाद में आप उसे इरेज कर दो, राइट। डेक में कभी भी इस वाले पार्ट्स को हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, क्लियर, राइट। सपोज ओके अगर हम इस वाले पार्ट को भी लेते हैं तो इस वाले पार्ट में भी यही चीज है, आपके पास में a प्लस ए है, तो सबसे पहले हमने a प्लस ए को यूज किया a, और यहाँ पे हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाओ। आप a प्लस ए है तो अब a रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट का मतलब हमें दोबारा नहीं बनाना है, क्योंकि डैग रिपीटेशंस को अवॉइड करता है, तो हमने इसी के साथ में एक लूप आपने लगा दिया, राइट। सो ये किसका एक्सप्रेशन है, a प्लस ए का। अगेन फिर से हमारे पास में क्या था, a प्लस ए, हमने फिर से a प्लस ए बना दिया, और इसके बीच में क्या लगा हुआ था, प्लस, तो हमने प्लस सिंबल यूज किया, राइट। मीनिंग क्लियर है। तो एक बार आप इसको गो यस थ्रो सर। करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, सिंपल चीज है, ओके सर। बहुत हार्ड नहीं है, राइट। ओके, कल मिलते हैं फिर, ओके सर। थैंक यू। सर ये थैंक यू सर। अपलोडेड है? ये अपलोड हो जाएगा बेटा अभी, ठीक है, ओके ओके सर। ओके।